salutation to the God. God means actually pure consciousness. God means actually pure consciousness. The respiration of human being and a pure uh, consciousness different. Respiration of man and woman uh, and the realization of your consciousness is different. Pure consciousness, that is the name actually of the God. But the respiration, we can say the name of the world because uh, human being, man and woman, according respiration. If no respiration, no man and woman. But in the absence of uh, the respiration, pure consciousness is always no gap of pure consciousness. Pure consciousness is always because this is immortal. Uh, so the differences between respiration and the pure consciousness we should know clearly because according God, if we have to live, then we should follow only pure consciousness. Respiration, the time of respiration, the period of respiration, not sure of even 1 minute, uh, no guarantee, no sure of the respiration, even 1 minute of human beings. So we all belong according to God, means according pure consciousness. Actually, we are not according respiration because there is no faith upon respiration because respiration uh, cannot be even 1 minute also. So where is a sure? Where is surety? We should follow that. That is pure consciousness. Uh, how the respiration is false and how pure consciousness is always truth. Now I describe from the conclusion of Gita's supreme spiritual book of the world named Gita. From the point of view, Gita, from the conclusion of Gita, we can say that respiration, uh, not true. True only pure consciousness. So we all, man and woman, we all belong according pure consciousness. Actually, not according the respiration. Now I describe this. Now means today, 2024, December 24 today. Today Tuesday, according Hinduism, Paush Krishna Paksha Navami Tithi. Today, according Hinduism,
today Mangalbar, according Nepali Vikram Sambat 2081, Paush Maina, month Paush, and the date 9th today, Mangalbar. This presenting by the president of Immortal Pleasant Center in Nepali Akhand Suh Kendra from Nepal country, from Nepal Bhairava city, from Nepal Parasi city, from Nepal Tansen city, from Nepal Botol city. Now we are telling and listening through radios, through FM, about our immortal nature, that is according to pure consciousness. Actually, we are not according respiration, because no faith, even of 1 minute, but all sure of pure consciousness. The name of God actually pure consciousness. Now I give proof according Gita how respiration is always false and pure consciousness is always truth, always reality, always our immortal nature, pure consciousness. Now I describe in Indian language and in Nepalese language. अभिवादन परमात्मा. परमात्मा वास्तव में शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध, कभी भी अशुद्ध नहीं, और हरदम चैतन्य, जड़ कभी भी नहीं है, हरदम चैतन्य, जिसको शुद्ध चैतन्य कहा जाता है. परमात्मा का जो वास्तव अर्थ है वो शुद्ध चैतन्य ही है, वो अमर है, परिपूर्णता है, सबके अंदर है, सबके हृदय में है ये. इसलिए अगर इसको ले लें तो हम लोग, संसार का हम सब लोग जब भी मुक्ति के लिए खुला है, मोक्ष में रहने के लिए खुला है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य सबके हृदय में हरदम मौजूद है. वही वास्तव में परमात्मा है, जो जिसको आनंद रूप परमात्मा कहा जाता है. और ये हम समझेंगे, जब हम समझेंगे गीता के तात्पर्य के अर्थ अनुसार कि श्वास प्रश्वास जो है रेस्पिरेशन, ये और शुद्ध चैतन्य जो है प्योर कॉन्शियसनेस से अलग अलग है. जो श्वास प्रश्वास है वो दृश्य है, लेकिन जो शुद्ध चैतन्य है वो दृष्टा है. दृष्टा को लेके शुद्ध चैतन्य में हम लोग पहुंचेंगे. अगर दृश्य को लेंगे तो झूठा मूठा में हम लोग पहुंचेंगे. श्वास प्रश्वास जो है वो दृश्य है. शास्त्र का सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत है, दृष्टा में दृश्य कभी भी नहीं हो सकता है. दृष्टा में दृश्य कभी भी नहीं हो सकता है, अर्थात दृश्य जो है हरदम मिथ्या होता रहता है. मिथ्या जो श्वास प्रश्वास मिथ्या झूठ मूठ इसलिए है कि श्वास प्रश्वास दृश्य है. श्वास प्रश्वास चल रहा है या नहीं चल रहा है हम लोग खुद जानते हैं. जानने वाला साक्षी चैतन्य परब्रह्म परमात्मा है, जिसको जाना जाता है. जैसा श्वास प्रश्वास वो दृश्य है, मिथ्या है, झूठा है. वो संसार शरीर, भौतिक संसार के तरह है, जो मिथ्या है, जिसको 1 मिनट भी भरोसा नहीं है. लेकिन जो शुद्ध चैतन्य है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो प्योर इंटेलिजेंस है, जो ज्ञान है, जिसको नॉलेज कहा जाता है, यह है हम लोगों का असली स्वरूप जो हरदम रहता है. ये जो श्वास प्रश्वास जो आया है, जो संसार के अंदर है, जो शरीर के अंदर है, वो झूठ मूठ से आया है. झूठ मूठ को अज्ञान कहा जाता है, इंग्लिश में इग्नोरेंस कहा जाता है. द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड, द सोर्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, द सोर्स ऑफ फिजिकल बॉडी is only ignorance. Ignorance means no knowledge of the God, no knowledge of pure consciousness. If until we do not know the pure consciousness, our ignorance always remains. Due to ignorance has come false oral, false physical world. So there is a role of
main role of respiration for the world, for the physical world, which is false, 100% false, because 100% truth is pure consciousness. We all belong to pure consciousness. Actually, we do not belong to the respiration, because ये जो है इसलिए जो श्वास प्रश्वास मिथ्या है, क्योंकि ये दृश्य है। दृश्य का मतलब जिसको जाना जाता है। जैसा श्वास प्रश्वास चल रहा है या नहीं चल रहा है, हम खुद लोग जानते हैं। जानने वाला और जिसको जाना जाता है अलग अलग है। जो श्वास प्रश्वास हो उसको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि वो दृश्य है। जैसा शरीर दृश्य है, जैसा इंद्रिय दृश्य है, जैसा प्राण, वैसा ही प्राण भी दृश्य है, वैसा ही मन भी दृश्य है, वैसा ही अज्ञान, ये सब दृश्य है। इसलिए ये सब झूठ मूठ है। जो दृश्य है वास्तव में झूठ मूठ है, और दृश्य का दृष्टा जो होता है वो हरदम सत्य रहता है। ये जो है वेदांत का सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है, वेदांत दर्शन का एक कहना है, एक गीता का तात्पर्य है। अगर गीता तक को तात्पर्य जाना जाए तो हम लोग सब अमर हो जाएंगे। अगर गीता का तात्पर्य हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोगों का जीवन झूठ मूठ में बीत जाता है, अर्थात मृत्यु जन्म के चक्कर में हरदम बीतता है। इसलिए अभी अगर परमात्मा में बदले तो भविष्य हरदम परमात्मा में रहेगा, लेकिन संसार कहीं नहीं जाएगा जब तक हम लोगों का आयु उम्र है। क्योंकि जो कल परसों हम किए थे वो हम लोग को आयु उम्र जब तक रहेगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। वही करने के लिए ऐसा रहा है। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक रहेगा, लेकिन लेना है परमात्मा को जो हरदम रहेगा। क्योंकि जो सारी संसार है, जो श्वास प्रश्वास में निर्भर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर रहे तो भी वही 50 वर्ष, 100 वर्ष है, 150 वर्ष है, उसके से ज्यादा तो नहीं है। लेकिन जो शुद्ध चैतन्य है, जो अमर है, जो परिपूर्ण वस्तु है, वो हरदम के लिए है। वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ अमरता है, पूर्णता है। संसार में जो सुख है उसमें दुख भरा हुआ है, लेकिन आत्मा परमात्मा जो हम लोगों का असली स्वरूप है, वहाँ जो सुख है वहाँ उसमें दुख अंदर नहीं है। दुख छिप के नहीं बैठा है। संसार के सुख और सुख में दुख छिप के बैठा है। वास्तव में बाद में हमको धोखा मिल जाता है, लेकिन परमात्मा में जो सुख है उसके अंदर दुख नहीं है, कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, हरदम अमरता है, परिपूर्णता है। ये बात को हम नेपाली भाषा में कहेंगे, परमात्मा र श्वास प्रश्वास यो दुईटा अलग अलग हो। जसरी निर्मल आकाश र बादल अलग अलग हो। बादल जस्तो श्वास प्रश्वास हो, निर्मल आकाश जस्तो शुद्ध चैतन्य परब्रह्म परमात्मा हो। हाम्रो सम्बन्ध छ परब्रह्म परमात्मासँग, जो सधैँ रहिरहन्छ। तर श्वास प्रश्वास भन्नेको यसको केही ठेगाना छैन, किनकि यो दृश्य हो। दृश्य र द्रष्टा जहिले पनि अलग अलग हुन्छ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो आफ्नो परम प्रिय उद्धव भक्तलाई श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत शास्त्र 11 स्कन्धमा, द्रष्टामा दृश्य हुन सक्दैन। द्रष्टालाई लिएपछि परमात्मालाई पाइन्छ, दृश्यलाई लिएपछि झुटमुट हुन्छ। त्यसकारण हामी दृश्य अन्तर्गत होइन। श्वास प्रश्वास दृश्य हो, प्राण दृश्य हो, प्राणलाई जान्नेवाला द्रष्टा हो। प्राणको द्रष्टा, द्रष्टा साक्षीमा साक्ष्य जो छ प्राण हुनै सक्दैन। द्रष्टामा दृश्य हुनै सक्दैन। द्रष्टा परमात्मामा दृश्य श्वास आदि हुनै सक्दैन। यो हो गीता आदिको प्रमाण, अकाट्य प्रमाण। दुनियाँमा कसैले यो प्रमाणलाई काट्न सक्दैन। त्यसकारणले श्वास प्रश्वास रहित शुद्ध चैतन्य अमर परिपूर्णता हो, जहाँ आनन्द आनन्द छ। यसलाई आत्मा परमात्मा शुद्ध चैतन्य भनिन्छ। त्यही नै हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो। यस्तो निश्चयबाट हाम्रो अमरता, परिपूर्णता, मोक्ष प्राप्ति जीवनको सर्वोत्कृष्ट सफलता हुन्छ। हैन भने जीवन असफल। अहिले समय भएको छ, यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।